Hello guys, welcome to all of you. Today I will explain about tetraterpenoids, that is also called tetraterpenes, and in these tetraterpenes I will discuss about the carotenoids, and this carotenoid is in the form of beta carotene, which is a part of vitamin A. So you already know about the vitamin A, that is also known as retinol. About 200 naturally occurring tetraterpenes are known, and these are referred to as carotenoids. Carotenoids occur in the leaves, shoots and roots of all higher plants, contain up to 0.1% of dried plant materials. तो carotenoids जो होता है ये जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके लिप्स में, शूट्स में और रूट्स में पाया जाता है. शूट्स मीन्स स्टेम्स, and they serve as color filters for photosynthesis in leaves of plants. Actually इनका काम क्या है? They serve as color filters for photosynthesis. During the photosynthesis they give the different type of color changing in the plant materials, giving rise to the yellow and red color of the leaf during fall. This gives the red and yellow color. The yellow and red color in plants is responsible due to the formation of beta carotene. We can order Wagner order 1831 first isolated carotenes from carrots, and he therefore named it as carotene. तो इस कैरोटीनॉइड्स का सबसे पहले जो है सिंथेसाइजेशन वैगनर ऑर्डर ने किया था, और उसी बेस पर इसका नाम जो है कैरोटीनॉइड्स उन्होंने रखा, क्योंकि ये स्पेशली कैरेट से फॉर्म होता है, सिंथेसाइज होता है, आइसोलेट होता है. कैरेट कंटेन्स नियर अबाउट 15% अल्फा एंड 83.9% beta carotene and 0.1% gamma carotene. All these carotenes are available in the carrots. The differences, you can see that the differences between the alpha, beta and gamma carotenes is that there is attachment of the terminal groups, are either if they are same, they are different at their positions at alpha, beta or gamma. Beta carotene is more precisely referred to as beta carotene. इसे beta carotene भी कहा जाता है, gamma carotene as beta, psi carotene and alpha carotene as beta, epsilon carotene. There are so many different type of names of this type of carotenes, and in all these carotenes the name beta carotene indicate that both end groups are same. जिसमें बीटा कैरोटीन्स का मतलब होता है कि जो एंड ग्रुप होता है वो सेम होता है. अब जैसे यहाँ एक बीटा कैरोटीन दिया गया, आप नीचे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बीटा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन. तो इसमें जो है जो रिंग कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड 2 अल्काइल ग्रुप एंड 1 मिथाइल ग्रुप and 2 methyl group at German position. Here you also see that 1 methyl group at beta double bond attached with the double bonded carbon, and 2 methyl group attached with the German position. So in these cases both the terminal groups are look like same, and in this way this is called the beta carotene or beta carotene. Next one, here you see that beta epsilon carotene. What do you mean by epsilon? Then we have 2 alpha, beta, gamma, epsilon. This is indicated by the numbering here. One group is attached with the like somewhat this. Suppose that this is the alkyl group, and suppose if we give the name this alpha, beta, gamma, delta and epsilon, here you see that this is alkyl group and this is the alpha and beta.
सो यहाँ पर अल्फा पोजीशन से अटैच्ड है और यहाँ पर जो है ये एप्सिलॉन पोजीशन से अटैच्ड है, तो इसे अल्फा कैरोटीन भी या बीटा एप्सिलॉन कैरोटीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द बीटा साई कैरोटीन, जिसे हम गामा कैरोटीन कहते हैं। Here you see that both the rings are not same, one is opened and there is the closed, but one containing the one double bond, other containing two double bond, in this way. In the same way, here you see that gamma carotene are also represented here by these linear structures. So now this one type of beta carotene which is found in lycopene, this is the part of tomato, and some other carotenoids are vitamin A active as they go degraded to vitamin A, aldehyde in the human and mammal organism. Beta carotene and some other carotenoids are used as coloring agent for food and cosmetics, and are as vitamin B precursors and antioxidants in medicines. यानी बहुत से ऐसे विटामिन बी के फॉर्मेशंस में ये जो है प्रिकर्सर्स का काम करता है, और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो मेडिसिन में बनाए जाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल यूज जिनका किया जाता है, उसमें भी देखा जाए तो ये बीटा कैरोटीन की जो चेन है ये एक तरह से इनिशिएटर या प्रिकर्सर्स का काम करती है, उसमें ये अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर एक फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया गया है लाइकोपेन, जिसे हम गामा कैरोटीन के नाम से भी जान सकते हैं, आप बोल सकते हैं। सो now I will explain about the structure of beta carotene. This means that what type of structure of beta carotene should be. This will either linear or in circle, or you can say that how many number of double bonds are there, or you can say that how many number of alkyl or aryl group are attached in the ring. The bond is either homoannular or heteroannular in this way, and so on. The first of all, the molecular formula beta carotene is C40H56. This is experimentally proved. हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के थ्रू ये प्रूव किया गया है कि बीटा कैरोटीन का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो C40H56, कार्बन 40 और हाइड्रोजन 56 होता है। ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बीटा कैरोटीन गिव्स पर हाइड्रोकैरोटीन का फॉर्मेशन यानी इसका हाइड्रोजनेशन होता है। तो देयर नियर अबाउट the molecular formula should be changed. It change from C40H56 to C40H78. How many number of hydrogens are added here? Here you see that 56 and 78. Near about this is 22. Somewhat 22 hydrogens are added after catalytic hydrogenation. This proves that there are 11 double bonds are present in their chain. Here you can see that if we represent the beta carotene structures, here you see that 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Somewhat here you see that if you numbered one by one, then one bond is, एक बॉन्ड यहाँ होना चाहिए आपका, एक बॉन्ड यहाँ छूट गया है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये हुआ कि 11 डबल बॉन्ड when reduced by adding with 22 hydrogen atom, then the molecular formula will change from C40H56 to C40H78, and the third one is that, so this is a molecular formula C40H78, which is found in the beta carotene, can similar to the general formula of CnH2n-2, CnH2n-2. This is the per hydrocarotene corresponds to. It shows that beta carotene contains 2 rings. इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 रिंग्स अवेलेबल होता है। तो इसके थ्रू जो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशंस होता है उसके थ्रू अगर हम निकालें तो वहाँ से पता चल सकता है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या फिर कितने रिंग या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। Next one is the red color of beta carotene suggested the presence of conjugated double bonds, and this is supported by the formation of an adduct with malic anhydride. इसमें जो रेड कलर ऑफ बीटा कैरोटीन है होता है वो ड्यू टू द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के नाते होता है, और ये सपोर्ट करता है कि फॉर्मेशन ऑफ एन एडक्ट विथ मैलिक एनहाइड्राइड। 1 मोल ऑफ बीटा कैरोटीन रिएक्ट्स विथ 5 मोल ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म डिल्स एल्डर एडक्ट। यानी ये जो बीटा कैरोटीनाइड है एक तरह से ये डिल्स एल्डर रिएक्शंस परफॉर्म करता है, और इसका लगभग 5 मोल्स ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड यूज़ होता है 1 मोल ऑफ बीटा कैरोटीन के साथ इंटरैक्ट होने के लिए, और इसके बाद एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। Formation of this adduct shows that 10 double bonds are conjugated double bonds. इसमें जो 10 डबल बॉन्ड्स हैं वो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, और 1 बॉन्ड जो है वो नॉन कंजुगेटेड बॉन्ड। So beta carotene is readily oxidized by air with the appearance of violet color. Since this order is characteristics of beta ion, it is therefore concluded that beta ionone unit is present in beta carotene. This has been further confirmed by oxidation of beta carotene. Benzene solution of beta carotene of oxidation with cold aqueous potassium permanganate yield beta ionone. This confirms that the ring of beta carotene contain 1 beta ionone nucleus. Here you see that the beta ionone on ozonolysis gives geronic acid as one of the product. Here is geronic acid. So here one group is also available in the beta carotene. Beta carotene also gives geronic acid on ozonolysis. 1 mole of beta carotene gives 2 mole of geronic acid. C14, C14, C13, C13. You will see that, and there is formation of geronic acid 2 moles. This reaction shows that beta carotene contains 2 beta ionone residue. Thus partial structure of beta carotene can be represented as follows. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है, तो आप इस स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं कि बीच में C14 ये कंजुगेटेड डबली बॉन्डेड से अटैचमेंट है कार्बन चेन का, और बाकी ये जो दोनों साइड में C13 ये रिंग्स और इसका जो साइड चेन दिया गया आप देख सकते हैं कि दिस इज अटैचमेंट। इसी को कहते हैं बीटा इनोन स्ट्रक्चर, और ये 2 रेसिड्यू है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, और इसी से दोनों बाकी जो है कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक अप रहते हैं। As the color and absorption maximum beta carotene is due to extended conjugation, it follows that C14 portion of the molecule will be conjugated
The presence of conjugation in this central position has been confirmed by the fact that the beta carotene form a diel shelter adduct with 5 mole of maleic anhydride. यानी ये जो रेड कलर जनरली अवेलेबल होता है, यानी इसमें जो लैम्डा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो मैक्सिमम होता है ड्यू टू द एक्सटेंडेड इन कंजुगेशन, यहाँ जो बैथोक्रोमिक इफेक्ट है यानी वो इंक्रीज हो जाती है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की तरफ बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है बैथोक्रोमिक। और बैथोक्रोमिक इफेक्ट को भी रेड शिफ्ट कहा जाता है, और ये जो रेड शिफ्ट होता है स्पेशली बीटा कैरोटीन में, ये ड्यू टू द एक्सटेंडेड इन कंजुगेशन फॉर्म, कंजुगेशन फॉर्म इसका एक्सटेंड कर जाता है। Now on oxidation of beta carotene with chromic acid leads to formation of acetic acid. In this oxidation, CCH3 double bond CH group is always oxidized to acetic acid. During the course of oxidation, one CCH2 CH3 unit gives 1 mole of acetic acid. This method is known as Kuhn-Roth methyl side chain determination. यानी Kuhn-Roth methyl side chain determination के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि ये जब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है बीटा कैरोटीन का, तो इसमें एक चेन जो होती है जिसमें CCH3 डबल बॉन्ड CH चेन जो होती है ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि इसमें CC डबल बॉन्ड CH2 CH3 एक यूनिट जो है वो प्रेजेंट होता है। 1 mole of beta carotene on oxidation with chromic acid gives 5.4 moles of acetic acid. This oxidation results that there are 6 CC double bond CH CH3 groups is the beta carotene structure. Formation of 6 mole of acetic acid accounts for 2 CCH CH3 groups on the 2 beta enone rings and remaining 4 from the central parts between the 2 beta enone rings. In other words, we can say that C14 middle part of beta carotene contains 2 CCH3 CH groups. इसमें ये एसिटिक एसिड फॉर्मेशन या फिर डील सेलर फॉर्मेशन से ये कंफर्मेशन होता है कि बीटा कैरोटीन में बीटा इनोन रिंग के साथ जो है जो यूनिट अटैचमेंट होता है C डबल बॉन्ड CH CH3 ग्रुप्स का, वो लगभग 4 से 5 यूनिट होता है। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ C14 पोर्शन ऑफ बीटा कैरोटीन। जो C14 स्ट्रक्चर्स है वो एक्चुअल में कंजुगेटेड, और हमने देखा कि ये टोटली कंजुगेटेड होता है, तभी जो है कंजुगेशन जब एक्सटेंड करता है तो लैम्डा मैक्सिमम जो है इसका बढ़ जाता है, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है, इसीलिए कलर चेंजिंग इसकी आती है। The formation of these products can be rationalized by the cyclization of fragments। यहाँ अगर देखा जाए कि बीटा कैरोटीन का अगर हम डिस्टिलेशन कराते हैं तो ये टालुइन का फॉर्मेशन करता है, मेटाजाइलिन का फॉर्मेशन करता है, या फिर 2,6-डाइमिथाइल नेफ्थलीन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो साइक्लाइज्ड फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द कंजुगेटेड चेन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द बीटा इनोन moiety in the partial symmetrical structure for beta carotene. The following types of conjugated chain fragments would give the desired aromatic products। तो कहने का मतलब है जो C14 कार्बन चेन रिंग है, अगर उसको कुछ इस तरह से बना दिया जाए, यानी जो रिंग कुछ इस तरह से बनी हुई है, लाइक दिस, ऐसे बनी हुई है यहाँ पर ऐसे, इसी रिंग्स को आपस में फोल्ड कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसी को अगर आप ओपन करेंगे तो ये 1 2, अब यहाँ देखिए एक और एक यहाँ हो गया इस तरह, और इसके साथ एक यहाँ जुड़ा हुआ है इंकाइल ग्रुप। तो इस तरह जब इस रिंग को आप स्टिच करेंगे तो वो इस तरह से जो है फैल जाएगा, और इसे जब आप फोल्ड करेंगे तो वो कुछ इस वे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
इस वे में कन्वर्ट होने के बाद ये देखा जाता है कि ये जो है इसका जब डिस्टिलेशन कराया जाता है तो कौन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, और इस चेन को किस किस तरह से मोल्ड किया जाए तो कौन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शंस में आप देख सकते हैं अगर इस तरह से चेन बनाई जाए, उस चेन को मोल्ड किया जाए तो टाल्विन का फॉर्मेशन होगा। अगर उसी चेन को कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं नंबर 1 नंबर 3 पे एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया गया है या नंबर 1 नंबर 5 पे जोड़ दिया गया है, 1,3 डाईमिथाइल या 1,5 डाईमिथाइल की तरह बनाया जाए तो ये जो है एक तरह से मेटाजाइलिन का फॉर्मेशन करता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेटाजाइलिन। अगर 1,6 और 1,8 डाईमिथाइल कुछ इस तरह सी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं सी इक्वेशंस में कुछ इस तरह से मोल्ड किया जाए तो वो 2,6 डाईमिथाइल नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारी रिंग्स हैं केवल इन पर पोजीशंस जो है चेंज कर दिया जा रहा है एल्काइल ग्रुप का। इसके बाद साइक्लाइजेशन के थ्रू आप देख सकते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें एक या मैक्सिमम 2 एरोमेटिक न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, जो ये प्रूव करता है कि बीटा कैरोटीन का जो C14 चेन होगा वो लगभग समवॉट दिस टाइप दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर in the next one. The following geometrical structure of beta carotene would satisfy the requirements of A, B and C. Here you see that the structures which are explained above, A, B and C, A, B and C, A, B and C. These initial reactants must arranged in their regular fashion by means of this one. Here you see that the carbon from 3 to 7 have 1 to 5 positions, from 7 to 12 here is 1 to 6 positions, again 5 to 16 this is 1 to 5 position. This 1 5 this is the attachment of alkyl group, this indicates that attachment. It is interesting to note that two isoprene units coupled to tail fashion in the central position, which is biogenetically a characteristic feature of carotenoids. The symmetrical structure of beta carotene is due to the tail to tail in union of two isoprene units at the center. यानी इसमें जो आइसोप्रीन यूनिट्स होता है वो टेल टू टेल एडअप हुआ रहता है, जिसके कारण ये एक लीनियर चेन का फॉर्मेशन करता है, 1 से लेकर के 18 तक। आफ्टर दैट दिस इज वन साइक्लिक रिंग कंटेनिंग 2 alkyl group at the geminal position and 1 alkyl group at the double bonded carbon with 1 double bond in the ring. Now the symmetrical structure of beta carotene has been proved by the following characters or following features or following equations. Under these equations, इस इक्वेशंस के थ्रू ये प्रूव होता है कि बीटा कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल होगा या फिर अनसिमेट्रिकल होगा या एसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन has also been supported by the following oxidative degradation. कुछ ऐसे डिग्रेडेशंस हैं, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशंस हैं जिसमें बीटा कैरोटीन का अगर ऑक्सीडेशन कराया जाता है, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में कराया जाए या सोडियम परआयोडेट के प्रेजेंस में कराया जाए, क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में कराया जाए, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ समवॉट सम डाईहाइड्रो डाईकीटो या टेट्राकीटो कैरोटीनोन का फॉर्मेशन होता है, जो ये प्रूव करता है कि बीटा कैरोटीन का जो स्ट्रक्चर्स है वो समवॉट सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पर देखिए कि बीटा कैरोटीन C40H56 का जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो C40H56OH ट्वाइस, यानी यहाँ पर डाईहाइड्रो बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होता है, डाईहाइड्रो बीटा कैरोटीन। और उस जब डाईहाइड्रो बीटा कैरोटीन का सोडियम परआयोडेट के साथ ऑक्सीडेटिव
रिएक्शन कराया जाए तो डाई कीटोन या सेमी बीटा कैरोटीनोन का फॉर्मेशन होता है, which also having C40 carbon atom. After that, this diketone once again oxidized in presence of chromic oxides. This form the tetraketone, that is called beta carotenone, which also having the C40 carbon atoms. All these products formation indicate that the beta carotene having somewhat symmetrical structures. The number of carbon atom in beta carotene, dihydroxy beta carotene and semi carotenone is the same. This shows that double bond of one beta enone ring has been oxidized. Had the chain been oxidized, there would have been chain scission. Oxidation of semi beta carotenone fourth with chromium trioxide furnished tetraketone fifth, that is beta carotenone. The number of carbon atoms in this compound is also 40. This reveals the opening of second beta enone ring of beta carotene, जो ये कंफर्म करता है कि इसमें जो सेकेंड रिंग की ओपनिंग हो जाती है और इस तरह से ये बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन करता है. In this oxidation reaction, only one dihydroxy beta carotene and only one semi carotene are obtained. These experimental results shows that beta carotene has symmetrical structure. This has somewhat symmetrical structure. Hence, the oxidation may be formulated as follows. Here you see that this is the beta carotene, which under the oxidation with K2Cr2O7. Here you looks that you have not to see in the carbon chain which is bonded with the enone, that is beta enone ring. बीटा इनोन रिंग का मतलब हुआ ये जो दोनों रिंग्स है, ये आपकी रिंग और ये आपकी रिंग, ये आइनोन रिंग है, आइनोन रिंग, ये भी आइनोन है, ये भी आइनोन है. और इसके बीच में यहाँ जो कार्बन एटम्स हैं, दैट इज़ फ्रॉम C1 to C18, ये आपस में जो आइसोप्रीन यूनिट के थ्रू लिंकअप हैं, इनसे हमें नहीं मतलब, यहाँ सिर्फ मतलब है इस आइनोन रिंग में प्रेजेंट डबल बॉन्ड से. तो होता क्या है कि जब K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज्ड होता है और यहाँ ऑल का फॉर्मेशन होता है, OH OH डाईऑल. ये एक तरह से अनसेचुरेशन टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है. या फिर KMnO4 से भी रिएक्शन कराया जाए तो डाईऑल का फॉर्मेशन होता है, जो एक अनसेचुरेशन टेस्ट होता है. और ये अनसेचुरेशन टेस्ट ये प्रूव करता है कि जो आइनोन रिंग है उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और यही जनरली जो है ऑक्सीडाइज होता है. और ये अनसेचुरेशन टेस्ट ये कंफर्म करता है कि जो कलर है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का या पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है. तो कलर डिस्चार्जिंग किसके कारण होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाईऑल, क्योंकि डाईऑल जो है ये कलरलेस मॉलिक्यूल, कलरलेस कंपाउंड है. और इस तरह से एक कंफर्मेशन भी होता है कि जो स्ट्रक्चर्स दिया गया है बीटा कैरोटीन का, दैट इज समवॉट अनसैचुरेटेड. नाउ हियर यू आल्सो सीज दैट व्हेन अगेन द structures takes place, this diol once again oxidized into enone, that is called ketone. ये डाईकेटोन में कन्वर्ट हो जाता है. एक रिंग जो है हमारी सोडियम परआयोडेट के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है, तब देखिए एक रिंग ओपन हो जाती है. फिर क्रोमिक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो दूसरे रिंग में आप देखिए सेकेंड रिंग, इसको कुछ इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं. पहली रिंग यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कीटोन में कन्वर्ट होता है. और जब क्रोमिक ऑक्साइड आती है तो ये वाली रिंग यानी ये रिंग जो है ये ओपन हो जाती है और डाईकेटोन में कन्वर्ट हो जाती है. आप यहाँ देख सकते हैं. सो फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा कैरोटीन हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय इट्स सिंथेसिस. बीटा कैरोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम C15 वेटिक रिएजेंट A and C5 acetate B. These two on Wittig reaction gives vitamin A and acetate almost in quantitative weight. Retinol acetate, which is more stable than retinol, is purified by recrystallization from normal hexanes
retinol acetate on hydrolysis gives retinol, which on oxidation with MnO2 gives retinol D. And intermolecular McMurray deoxygenative coupling of retinol finally yields beta carotene. यानी एक तरह से देखा जाए तो जो रेटिनॉल पार्ट है, रेटिनॉल की जो चेन है, विटामिन ए की जो चेन है, जो उसी से जो है इस बीटा कैरोटीन का सिंथेसाइजेशन किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विटिक रिएजेंट दिया गया है, विटिक रिएजेंट। तो एक्चुअल में जो विटिक रिएजेंट होता है उसको हम फास्पिरेन भी कहते हैं, और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का जो है मॉलिक्यूलर पार्ट होता है, जिसमें 3 फिनाइल ग्रुप C6H5 थ्राइस। अगर इसको लिखा जाए विटिक रिएजेंट को तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, C6H5 टेकन थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा जो है फास्फेरेन जो है ये विटिक रिएजेंट होता है, और ये एक तरह से आयनाइजेशन फॉर्म होता है। ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो हो गया नेगेटिव और फास्फोरस हो गया पॉजिटिव। तो हमें ये देखना C6H5 थ्राइस P प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ये ग्रुप अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिस C15 विटिक रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विद द C5 एसीटेट, C5 इस 5वें पोजीशन पर एसिटिक ग्रुप लगा हुआ है, से जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ रेटिनॉल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द रेटिनॉल एसीटेट। अंडर हाइड्रोलिसिस एंड मैग्नीज ऑक्साइड और हेक्सेन के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शंस कराते हैं तो ये रेटिनॉल एसीटेट जो है ये रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो एस्टर है हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम रेटिनल कहते हैं। डी, सी और डी स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं। और फिर पुनः इस रेटिनल का हमें केवल इस ग्रुप को देखना है, वी हैव टू सी दिस ग्रुप्स ओनली। यहाँ पर आप देखिए ये आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, CHO में, CHO में। Next one, once again this retinal under reductions in presence of lithium aluminum hydride and also titanium trichloride, there is formation of beta carotene. Here you see that there is the formation of beta carotene. तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बीटा कैरोटीन का जो सिंथेसाइजेशन किया गया है वो स्पेशली विटामिन ए से किया गया, यानी रेटिनॉल से किया गया है, और विटिक रिएक्शंस के थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। ओवरऑल रिएक्शंस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड हियर। C15 विटिक रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। अब ये जो C15 विटिक रिएजेंट्स है उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसका प्रिपरेशन जो है एसीटोन और एसिटिलीन, एसीटोन और एसिटिलीन को जब एमीन और सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहाँ 3-ब्यूटाइन-2-ऑल का फॉर्मेशन होता है, 3-ब्यूटाइन-2-ऑल, यानी ये एसिटिलीन जो है यहाँ पर जा करके CH3 ग्रुप पर जो है ये जुड़ जाता है, और यहाँ से CH3OH, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। और फिर जब इसका कैटालिटिक रिडक्शन होता है जिसे हम लिंडलॉर कैटलिस्ट कहते हैं, H2PD बेरिलियम सल्फेट, ये लिंडलॉर कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में एसिटिलीन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड में इंटर कन्वर्ट हो गया। वंस अगेन दिस इज ट्रीटेड विद द एस्टोएस्टिक एस्टर, एंड एस्टोएस्टिक एस्टर के साथ जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो यहाँ पर देखिए समवॉट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एंड देन देयर इज रीअरेंजमेंट एंड डीकार्बोक्सिलेशन
this carbonyl compound is converted into 6-methyl 5-heptene 2-one में कन्वर्ट हो जाता है. 6-methyl 5-heptene 2-one once again treated with the acetylene in presence of amine and sodium carbonate. This is not Na2Cr3, this is Na2CO3 है, R3 रॉन्ग दिया है. तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एक मेजो कंपाउंड का, एक रेसमिक मिक्सचर का, जिसे हम डिहाइड्रोलिनोल कहते हैं, डिहाइड्रोलिनोल. एंड दिस डिहाइड्रोलिनोल once again treated with acetic ester and under rearrangement this is converted into डिहाइड्रोलिनोलिल एस्टोएसीटेट. और ये डिहाइड्रोलिनोलिल एस्टोएसीटेट का जब कैरोल रिएक्शंस कराया जाता है, यानी 155 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे हीट किया जाता है, तो ये रीअरेंजमेंट यानी इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये एक हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जो इनिशिएट यानी जो इमीडिएट रीअरेंजमेंट के थ्रू, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, एक तरह से हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं, कि थ्रू देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बीटा इनोन. यहाँ पर एक स्यूडो इनोन का फॉर्मेशन होता है. स्यूडो इनोन, दिस इज लीनियर स्ट्रक्चर विच इज रिसेंबलिंग टू जस्ट लाइक दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये जो टर्मिनल ग्रुप है इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया है और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है. सो व्हाट हैपन, दिस स्यूडो आयोनोन का जब H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं एक तरह से, तो ये बीटा आयोनोन का फॉर्मेशन कर देता है. बीटा आयोनोन यानी एक तरह से साइक्लाइजेशन हो जाता है. और ये बीटा आयोनोन वंस अगेन treated with acetylene under NaOH, there is formation of ethinyl linol. एथिनिल लाइनॉल का फॉर्मेशन होता है, जो कैटालिटिक रिडक्शन के थ्रू विनाइल लाइनॉल में कन्वर्ट हो जाता है. विनाइल लाइनॉल यानी जो ट्रिपल बॉन्ड है एसिटिलीन का, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस विनाइल लाइनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन देयर इज द ब्रोमिनेशन इन टर्मिनल पोजीशन. यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे इसका ब्रोमिनेशन हो जाता है. अब यही मॉलिक्यूल्स जो है आपका ट्राईफिनाइल फॉस्फीन के साथ ट्रीट होता है. जब इसको ट्राईफिनाइल फॉस्फीन के साथ ट्रीट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन के साथ जो है ट्राईफिनाइल फॉस्फीन अंडर बाइंड अप हो जाता है और फॉर्मेशन करता है विटिंग सॉल्ट का, C15 विटिंग सॉल्ट. This C15 means in this salt there is 15 carbon atoms are present, including with linear and cyclic chain. This is overall C15, and which undergoes reduction under butyl lithium. There is formation of Wittig reagent. तो इस तरह से जो है Wittig reagent एक तरह का जो है हमारा प्रिकर्सर्स है, इसका फॉर्मेशन होता है. और ये जो है फिर 5-C5 एसीटेट से ट्रीटमेंट करके ये फॉर्मेशन करता है बीटा कैरोटीन का. सो हियर यू सी दैट दी स्ट्रक्चर्स एंड अंडर साइक्लाइजेशन ऑल दीज रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड समवॉट लाइक दिस. तो कुछ इस तरह से ये रिडक्शन रिएक्शंस यहाँ पर दिखाए गए हैं, कि जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रोटोनेशन हो रहा है. और प्रोटोनेशन में जहाँ पर जेम डाई अल्काइल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है. आफ्टर दैट रीअरेंजमेंट के थ्रू ये नेक्स्ट डबल बॉन्ड ये रीअरेंज हो रहा है और यहाँ साइक्लाइजेशन हुआ, नेक्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ और या फिर से डिहाइड्रोजनेशन हो जा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जा रहा है और यहाँ से फॉर्मेशन हो जा रहा है आपका. दिस इज बॉन्ड रिंग.
बीटा इनोन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे वे में देखा जाए तो जो नेक्स्ट वन है, जो second byproduct under protonation, this also form and undergoes allylic substitution, allylic rearrangement, there is formation of this type of alkyl halide और यही जो है ब्यूटिक रिएजेंट के फॉर्मेशन में भाग लेता है। और इस तरह से C5 एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा अल्फ़ा डाईमिथॉक्सी एसीटोन से फॉर्मेशन होता है C5 एसीटेट का। तो इस तरह से ये दो जो है हमारे स्टार्टिंग मटेरियल जिसको हम प्रिकर्सर्स कहते हैं, ये तैयार किए जाते हैं, और जिसमें एक C15 वेटिंग रिएजेंट होता है और एक C5 एसीटेट होता है, और ये दोनों आपस में मिल करके फॉर्मेशन करते हैं रेटिनॉल चेन का, और यही रेटिनॉल चेन से बीटा कैरोटीन का सिंथेसाइजेशन किया जाता है। दैट्स